So yesterday, as I told you, we are going to start the inheritance. So just we have developed some application basic examples yesterday. Okay. So can you tell me the use of super keyword? Okay, base class variable, base class method, base class constructor. Correct. To call base class same name variable, to call base class same name method, and a what constructor, parametric constructor. Okay. So go to file, new, and take a project here. Take the project here. So let's create any example. Suppose employee application. Employee application. Okay. So how to implement the inheritance in employee application? Let's understand this. Okay, I'll take one more example of super keyword before the employee application. Okay. So file, new, and Java project here. Okay. Super example age. So what I'm doing now, let's create a 3 classes here. So the first class is grandfather. Okay. Then I'll create another class here, father. And there's one more class, new, and son. Totally we have 3 classes. So son extends father, and father class will extend grandfather. Go to grandfather class. So every class there is a variable, private, integer, gh. Okay. So I need a constructor here. Go to source, generate a constructor using fields. Okay. Then this is a constructor here, and then to print this age, public void show age is the method. So grandfather age is plus, okay, grandfather age is plus gh. Okay, so you have grandfather का class. Go to father class. In the father class, public father here. See, this is a grandfather class. Remember this. Grandfather class has fgh variable, one constructor and one method. Go to father class. There is a private integer fh and fh. Here fh this dot fh is equal to fh. I need one more method, same name method. Okay, that is the show age, and here you can print father age is fh. Similarly, create a son class. In the son class, private integer sh, and then public son, here integer sh. This dot sh is equal to sh. Okay, this dot sh is equal to sh, and we need this is father class, this is son class, public void show age. That's why so son age is plus sh. Okay. So this is a father class, grandfather class is there. In grandfather class we have fh, one constructor and show age method. In a father class we have a constructor and show age method. In a son class we have constructor and show age method. Okay, let's go to the main class. Right click,
new and create a class. Okay, so here is the age demo. Let's take a main class now. Okay, so here in the main class, son s is equal to new son and pass the age 20 here. So and s dot show age. तो अभी मुझे क्या करना है, सुनो कि मैंने सन को एज दे दिया 20, तो बस मैं ये दो ही वैल्यू यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ. नाउ अगर सन का एज 20 होगा तो आई एम अज्यूमिंग दैट कि फादर का एज होगा 50 और ग्रैंड फादर का एज होगा 80. सुनो, व्हाट इज द क्वेश्चन, लिसन. इफ द सन एज इज 20, अगर सन का एज 20 है तो फादर का एज होगा 50 एंड ग्रैंड फादर का एज आएगा 80. ओके, बट वी आर गोइंग टू कॉल ओनली टू लाइन्स हियर. सो व्हाट शुड आई डू नाउ? ओके, ज्यांचं झालंय त्यांनी नका सांगू हा, बाकीच्यांना विचार करू द्या. ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट शुड आई डू नाउ? सपोज सन का जो भी एज होगा उसमें 30 ऐड करके तुम्हें फादर का एज कैलकुलेट करना है. टेल मी क्या करना पड़ेगा? यस, देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे. लेट्स गो टू द सन क्लास. सन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे सुपर, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एस एच प्लस 30. यहाँ पे हम लोग आएंगे वापस. यहाँ पे आने के बाद सुपर एफ एच प्लस 30 ऐसे, तो ये जाएगा 50. यहाँ पे 50 इसको मिल गया वैल्यू. देन कम टू द फादर क्लास. यहाँ पे वैल्यू कितना, सॉरी लेट मी जस्ट स्टार्ट ओवर हियर. देखो क्या करेंगे हम लोग. यहाँ से हमने पहले मेन क्लास में आ जाओ. मेन में मैंने 20 पास कर दिया, 20 में तुमने 30 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 50. ये जाएगा फादर के पास. यहाँ पे आ गया वैल्यू 50, इसके पास वैल्यू आ गया 50, तो 50 के अंदर 30 दे दिया, तो ये गया ग्रैंड फादर के पास. ग्रैंड फादर का एज आ गया 80. 50 प्लस 30 80, तो यहाँ पे ग्रैंड फादर का एज आएगा 80. उसके बाद फादर क्लास में आओगे तो इसका एज होगा 50, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 50. देन अगेन कम टू द सन क्लास. सन के पास यहाँ पे वैल्यू आया था 20, तो इसको एज मिल गया 20. ओके, नाउ कम टू द मेन क्लास. मेन क्लास ने शो एज कॉल किया सन क्लास का, तो ये बट अभी ये शो एज को कॉल करना है फादर के शो एज को, तो यहाँ पे लिखो सुपर डॉट शो एज. फिर ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा किसको, सुपर डॉट शो एज को, मतलब ये कॉल करेगा ग्रैंड फादर के एज को. उसके बाद ये होगा यहाँ पे फादर का एज, और यहाँ पे आके मिलेगा हमें सन का एज, और यहाँ पे आके दिस इज द योर शो एज हियर. दैट्स इट. यहाँ पे हम लिखेंगे ठीक है. तो देखो हियर वी आर यूजिंग अ सुपर कीवर्ड टू कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, as well as we are using super keyword to call the base class same name method. We are using super keyword to call the base class constructor, or we are using the super keyword to call base class constructor. Everybody understood? Yes, ठीक है. तो हमने क्या किया, देखो आई विल रिपीट अगेन, कि सबसे पहले सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो सन यहाँ पे आएगा. सन के कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने सुपर को यूज किया. कितना वैल्यू था ये 20 प्लस 30 हो गया 50. सुपर को कभी भी पहला लाइन ही लिखना है. सुपर कैनॉट बी अ सेकेंड लाइन. रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू राइट द सुपर एज द फर्स्ट लाइन. तो ये सुपर कॉल करेगा इसको. यहाँ पे आ गया 50 प्लस 30 ये हो गया 80. यहाँ पे आ गया 80, तो पहले इसको 80 दे दिया, वापस आ गए इसको 50 दे दिया, वापस आ गए इसको 20 दे दिया. ओके, एंड देन कम टू मेन. मेन ने क्या किया, शोएज को कॉल किया. इस शोएज ने सन के शोएज ने बेस, इसका सुपर कौन है, फादर. तो अगर मुझे ग्रैंड फादर का सुपर कॉल करना होगा अगर सन के अंदर, तो देखो ग्रैंड फादर का सुपर, तो कैन आई राइट लाइक दिस, सुपर डॉट शो एज. व्हाट डू यू थिंक? सुपर डॉट शो एज चलेगा कि नहीं, ये बताओ तो. व्हाट डू यू थिंक? हाँ देखो, नम्रता ने देखा.
एरर आ रहा है तुम्हारे सामने, कोड है, लुक एट दिस, लुक एट दिस, यहाँ पे एरर है, नॉट अलाउड। नहीं तो तुम ऐसे सुपर सुपर करके सुपर 30 हो जाओगे। क्लियर? लिसन, डोंट राइट द सुपर मेनी टाइम्स, ओके? दिस ओनली वन सुपर अलाउड, क्लियर? अंडरस्टूड? So only one super keyword is allowed. Please remember this. Okay, everybody. You cannot call the मतलब grandfather का मेथड son के अंदर कॉल नहीं हो सकता, याद रखो। जैसे कि as I said, अगर हमने कल देखा था कोड को, ये A है, उसके बाद ये है B, ये है C, A, B और C। ओके, इसको इनहेरिट किया है यहाँ पे, इसको इनहेरिट किया यहाँ पे, तो इसका सुपर मतलब ये और इसका सुपर मतलब ये, ओके? ये यहाँ पे कॉल नहीं कर सकता, नॉट अलाउड, क्लियर? दिस इज नॉट अलाउड, एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके, रिमेंबर दिस। यहाँ से हम इसको कॉल करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉल करेंगे। सो ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा सुपर का यूज। तो देयर आर 3 यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर। एम आई राइट एवरीबडी? तो इसको लिखना नहीं है तुम्हें, इस एग्जांपल को ट्राई करो बिना देखे टाइप करने का, ठीक है? ट्राई टू टाइप दिस प्रोग्राम विदाउट अ रेफरेंस। सो गाइस, दिस इज व्हाट द डिफरेंस इन द ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग। देखो आज नहीं, लाइक टुडे आफ्टर सो मेनी डेज आई कंडक्टेड द ऑफलाइन सेशन, so definitely there is huge difference between the online session, okay? In our scenario, मैं जब मेरे सिनेरियो में बता रहा हूँ, मुझे भी डिफरेंस समझ में आता है, because like in today's in a classroom session it is completely a development environment. वहां पे मैं ऐसे नहीं करता हूँ जैसे मैं अभी तुम्हें यहाँ पे सिखा रहा हूँ। वहां पे people are like doing the course, I am guide, like I am giving like a mentor over there। मैं सिर्फ एक सिंटैक्स लिखूंगा और वो आगे कोड करना शुरू करेंगे, और इस तरीके से कम 3 घंटे का सेशन चलता है, ठीक है? कम से कम 2 से 3 घंटे का सेशन होता है वहां पे, क्लियर? बट ऑनलाइन में यही एक प्रॉब्लम है कि तुम लोग रेगुलरली कोड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट? और वहां पे कैसे होता है, एज पर द स्टूडेंट हमें थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करना पड़ता है, ठीक है? तो प्लीज, दिस इज ओनली वन रिक्वेस्ट, लाइक दिस वन ओनली वन डिसएडवांटेज आई ऑब्जर्व इन ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड इन द क्लासरूम ट्रेनिंग्स, ओके? कि ऑनलाइन में तुम लोग लेक्चर के बाद या अभी लेक्चर कैसे अटेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आई डोंट नो दैट। आफ्टर द सेशन प्लीज ट्राई टू कंप्लीट द एग्जाम्पल, दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। और उसके आगे बहुत चीजें हैं, ठीक है, वो हम लोग बाद में बताऊंगा, बट स्टिल एटलीस्ट कंप्लीट द सेम एग्जाम्पल आफ्टर द सेशन इमीडिएटली। यस नम्रता, व्हाट इज द क्वेश्चन? नो, जावा डज नॉट अलाउ, जावा डज नॉट अलाउड मल्टीपल इनहेरिटेंस। प्रतीक्षा, understood Pratiksha? Answer of your question, Java does not allow multiple inheritance. सन क्लास मध्ये गेटर सेटर यूज केलं तर तिथे शो मेथड यूज करू शकतो का? Yes, getter setter is just a way to get the private data. तर शो मेथड लिहिली तरी चालेल, गेटर सेटर लिहिलं तरी चालेल, पण गेटर सेटर कधी घ्यायचं असतं, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की whenever there is any entity class. Now what is the entity class? Laptop is an entity, okay? उसके बाद अगर देखोगे तुम लोग, human is an entity, employee is an entity। तो इस सिनेरियो हम लोग बेसिकली गेटर सेटर यूज करते हैं, ठीक है? ऐसे सिनेरियो में अगर मैंने तुम्हें पूछा ग्रैंडफादर और फादर में क्या क्या एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो बहुत रेयरली आएगा कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल। तो यहाँ पे राइट नाउ देयर इज नो नीड टू टेक द गेटर सेटर। गेटर सेटर कब यूज होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट है, देन यू कैन गो फॉर गेटर सेटर। बट यहाँ पे भी यूज किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज दैट। Variables are private, variables are protected, variables are public. That doesn't matter with getter setter. Getter setter must be a public always. चिन्मयी, त्याचा प्रॉब्लेम कुठे होईल चिन्मयी? ओनली चाइल्ड क्लासवर रिस्ट्रिक्शन येणार. इफ पब्लिक इज देअर यू कॅन ऍक्सेस एनिवेअर, प्रोटेक्टेड कॅन ऍक्सेस बाय ओनली चाइल्ड क्लास, अँड प्रायव्हेट नो बडी कॅन ऍक्सेस. ठीक है, विल डिस्कस दैट, वेट इट विल कम. राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू द कंसेप्ट ऑफ सुपर कीवर्ड.
Super keyword is used to call the base class constructor, to call the base class methods and variables. That's it. So can I go to next example? Please reply. Okay. So एम्प्लॉय का एग्जांपल कर रहा था मैं. ये एम्प्लॉय प्रोजेक्ट है. राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास. यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय. उसके बाद एम्प्लॉय के से तुम्हें 2 और क्लासेस बनाने हैं. यहाँ पे एग्जांपल हम लेंगे अभी मैनेजर. मैनेजर भी एम्प्लॉय होता है, याद रखो. उसके बाद और एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे डेवलपर. ये भी एम्प्लॉय है. तो एम्प्लॉय क्लास का प्राइवेट इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, प्राइवेट डबल एम्प्लॉय सैलरी. ठीक है. तो ये आ गए मेरे वेरिएबल्स. एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी. राइट. एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी. अभी इसको इनिशियलाइज करने के लिए वी नीड गो टू सोर्स, जनरेट अ कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे राइट क्लिक करो, गो टू सोर्स, जनरेट अ कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स. तो ही क्यों आ रहा है यहाँ पे? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, प्राइवेट प्राइवेट. राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स. हाँ, ओके. तो ये आ गया मेरा कंस्ट्रक्टर. तो ये सुपर किसको कॉल कर रहा है? इसका तो कोई पेरेंट नहीं है, इसका कोई बेस क्लास नहीं. तो ये किसको कॉल कर रहा है? तो सारे क्लासेस का एक बेस क्लास होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास. अगर ये लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा. बाय डिफॉल्ट ये होता ही है. Without extending any class, by default there is a base class which is called as the object class. Everybody clear? Without inheriting any class, there is a base class called as the object class. So ये जो super है, ये उस object class को कॉल करता है. ये देखो, ठीक है. ये कॉल करेगा object class को. तो ये होता है object class. It's the base class of all the classes. तो इस क्लास में यहाँ पे अगर देखोगे तुम लोग, ये जो सुपर कीवर्ड है ये कॉल करेगा. come to this place. यहाँ पे आके ये होगा सुपर कीवर्ड. ओके. ये कॉल करेगा ऑब्जेक्ट क्लास को. याद रखो कि सब क्लास का एक बेस क्लास होता है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन. फिलहाल मैं नहीं लिखता इसको, इग्नोर दे. इसको लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा. ओके. अभी इनको प्रिंट करने के लिए आई नीड अ वेरी मेथड्स. गो टू सोर्स एंड सोर्स, जनरेट द गेटर्स एंड सेटर्स. वैसे भी सेटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ गेटर चाहिए. सिर्फ गेटर आई वांट हियर. ये हो गए गेटर मेथड्स. फिर से एक बार बताता हूं मैं. राइट क्लिक, सोर्स एंड आई वांट अ getter setters, but I don't want getter method, don't want setter method, only getter method. Select the getter here. ठीक है. तो ये हो गया एम्प्लॉय क्लास रेडी. सेव करो इसको पहले. गो टू मैनेजर क्लास. मैनेजर इज एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आएगा इनहेरिटर. और मैनेजर के पास प्राइवेट में इंटीजर, चलो बोनस करके एक वेरिएबल होता है. मैनेजर को बोनस मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट. मैनेजर को क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट. ओके. राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट अ कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड. राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड. ये आ गया तुम्हारा मैनेजर क्लास. तो मैनेजर क्लास में तुम देखोगे, अगर मैं थोड़ी देर इक्लिप्स का एडवांटेज नहीं लेता हूं तो मैं मैन्युअली टाइप करता हूं. देखो, पब्लिक वॉइड, सो नॉट वॉइड, मैनेजर. यहाँ पे मैनेजर को भी आईडी है, मैनेजर को भी नेम है, मैनेजर को भी सैलरी है. इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, एंड लास्ट इज double employee ID, name and salary.
आईडी नेम एंड सैलरी। तो ये जो मैनेजर है ये इनहेरिट करेगा एम्प्लॉय को। कैसे करेगा देखो, सॉरी इसको बोनस भी देना पड़ेगा, पास द बोनस, पास दी बोनस, हाँ पास द बोनस ईयर। तो ये सुपर, यहाँ पे देखो क्या लिखा हमने, सुपर, रिमेंबर दिस, हाँ ये आ गया सुपर, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ये इधर आ गया। और एक बचा हुआ कौन है, बोनस इज इक्वल टू बोनस, ये आ गया। ठीक है, तो मतलब ये तीन वैल्यू, ये जो तीन वैल्यू है ये मैं यूज करूंगा एम्प्लॉय क्लास से, इसलिए इन तीनों को ऊपर भेज दो एम्प्लॉय के पास यहाँ पे। तो ये तीनों यहाँ से इसको इनिशियलाइज हो गए, मतलब आई कैन टेक दिस थ्री वैल्यू बाय यूजिंग दिस थ्री गेटर मेथड। कम टू द मैनेजर क्लास, the remaining one value assigned to the manager bonus year. Just generate the getter setter, only setter getter. Go to source, generate getters for this. That's it. This is the bonus. Similarly, go to developer class. Developer is a employee. Private integer number of hours. Okay, right click. Source, generator, constructor using field. ये देखो, तो ये आ गया डेवलपर का कंस्ट्रक्टर जिसमें 4 पैरामीटर है और एक होगा ये, कौन है ये, दिस इज द नंबर ऑफ आवर्स वाला। ओके याद रखो। तो ये तीनों वैल्यू हम पास करेंगे एम्प्लॉय के पास इधर, एंड जो एक वैल्यू है कौन सा, नंबर ऑफ आवर्स का, वो यहीं पे रहेगा। राइट क्लिक, सोर्स, गेटर सेटर्स, ये देखो, इसको सेव करो। ओके, अभी करना है मेन क्लास को यूज। मेन क्लास क्रिएट करो यहाँ पे, एम्प्लॉय मेन, मेन क्लास। मेन क्लास में क्या करना है देखो, सबसे पहले मेन क्लास में लेट्स क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजर इक्वल टू न्यू मैनेजर। यहाँ पे हम लिखेंगे मैनेजर का आईडी, मैनेजर का नेम, मैनेजर का सैलरी एंड मैनेजर का बोनस। एंड देन that's why so manager id plus mobj dot get manager id, एम्प्लॉय आईडी मतलब। ठीक है, देखो ये एम्प्लॉय का मेथड यूज किया मैंने मैनेजर के लिए, लिसन किया पूरी, एम्प्लॉय का मेथड यूज हुआ मैनेजर के लिए। सिमिलरली so मैनेजर नेम, यहाँ पे यूज होगा mobj डॉट गेट नेम, so यहाँ पे आएगा मैनेजर का सैलरी प्लस mobj डॉट गेट मैनेजर सैलरी, so मैनेजर बोनस प्लस mobj डॉट गेट बोनस। ये हो गया कौन, मैनेजर क्लास, याद रखो। दिस इज द मैनेजर क्लास डेटा। सिमिलरली लेट्स क्रिएट अ डेवलपर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू डेवलपर। यहाँ पे आएगा 201, एम्प्लॉय का नेम आएगा सपोज महेश, इसका सैलरी दे दिया इधर, एंड नंबर ऑफ आवर्स, एक्स्ट्रा आवरली उसको चार्जेस होता है। ओके, डेवलपर को आवरली चार्जेस मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि डेवलपर का आईडी प्लस obj डॉट गेट आईडी, मतलब ये जो एम्प्लॉय का जो मेथड है ये मैंने यूज किया डेवलपर के लिए, एम्प्लॉय का मेथड यूज किया मैनेजर के लिए, नेम और सैलरी एम्प्लॉय का यूज किया डेटा हमने मैनेजर के लिए। सिमिलरली आई विल यूज so डेवलपर नेम, इसको हम यूज करेंगे obj डॉट गेट एम्प्लॉय नेम, so डेवलपर सैलरी, इसको भी हम लोग यूज करेंगे obj डॉट
dot get salary. So developer number of hours, इसको भी हम यूज करेंगे obj dot get number of hours here. So this is manager data. Manager details and this side we have developer details. Developer details. Application. Here is the manager data and this is the manager ID, name, salary, bonus, developer ID, name, salary and number of hours. ओके तो ये जो तीन वैल्यू है जो हम मैनेजर के लिए और डेवलपर के लिए रीयूज कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस. This is understood everybody. This three value, okay, means this three method, okay, we are using for the manager as well as for the developer. So this is nothing but the what inheritance. समझ लगा सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाई. ओके ठीक है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस. क्या बोलते हैं इसको? इनहेरिटेंस. अभी जो तुम लोग के असाइनमेंट में बोला गया है क्वेश्चन, तो वहां पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक पर्सन नाम का क्लास लेना है एंड जस्ट इमेजिन. तो रियल टाइम से कंपेयर करो. पर्सन मतलब क्या? किसी भी पर्सन को फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, बर्थ डेट होता है. ओके उसके बाद तुम्हें एम्प्लॉय बनाओ, स्टूडेंट बनाओ. तो इस सिनारियो से तुम्हें वो प्रोग्राम करना है और सुपर कीवर्ड को यूज करना है. आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज द सुपर कीवर्ड टू कॉल द पर्सन कीवर्ड. येस येस पाठव. मला एक काम कर, जावाच्या फाईल व्हॉट्सअपला सेंड कर, मी ते डाउनलोड करून चेक करतो लगेच. ओके नम्रता व्हॉट्सअपला पाठव. मी जावा फाईल पाठव फक्त, म्हणजे मला चेक करता येईल. ओके बाकीच्यांना कळलं का प्रोग्राम मी काय करतोय? हाऊ टू यूज द सुपर कीवर्ड हियर अँड हाऊ टू यूज द सुपर कीवर्ड हियर. करायचंय, डोंट वरी. मेनी एम्प्लॉयचे मेनी करायचे आहेत. ओके जस्ट फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप समजून घ्या. या कन्सेप्ट एवढ्या सोप्या नाहीयेत जेवढ्या वाटताय तेवढ्या. कळलं का? ओके हे इतकं सोपं नाहीये, पण समजलं का पहिले हे सांगा मला सगळ्यांनी. प्लीज रिप्लाय एव्हरीबडी. अजून या कन्सेप्ट पुढचे 8 दिवस तरी चालणार आहे. ऍक्च्युली त्यांचं ते दॅट इज नॉट द करेक्ट वे. आय टेल यू की कसं करायला पाहिजे होतं. हे बघ आपण स्टँडर्ड वेने करूयात. चिन्मयी तसं करायचं म्हटलं ना चिन्मयी, ते त्यांचं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट बघितलं. दॅट इज नॉट द प्रॉपर वे. ओके सो बट तरी तुला जर तसं करायचं असेल चिन्मयी तर एक काम करावं लागेल. इथे तुला मेथड जर त्यांच्या सिनारिओने घ्यायचं असेल तर पब्लिक वॉइड हे असणारे क्रिएट काय काय मेथड बोलली तुम्हाला? ओके वन सेकंड. क्रिएट आणि शो मेथड कन्स्ट्रक्टर फाईल मध्ये सांगितलं इन असाइनमेंट. एक सेकंड थांब, मी पहिले माझ्या वेने करतो मग तुमचं वे दाखवेल तुम्हाला. ओके तो इथे मी काय करणार. नाव लेट्स टेक अनदर क्लास. राईट क्लिक न्यू अँड टेक अ क्लास हियर. right click new and create a class here. Employee info. Employee info. So in employee info, but before employee info I'll do one thing. Key before employee info okay now Spurti listen. See the search employee ID चा जो पार्ट आहे तो इफ यू रिमेंबर तो शॉपिंगचा कोड केला का? तू सांग मला. शॉपिंगचा कोड केला का? कस्टमर वगैरे. आता त्याच्यामध्ये तुला सर्चिंग करता येईल का? जर मी ज्या कस्टमरचा आपण 4 कस्टमर क्रिएट केले शॉपिंगसाठी पण तुला सांगितलं मी 3 नंबरचा कस्टमर सर्च कर, करता येईल का? बरोबर. तर तेच लॉजिक आहे. आपण ऑलरेडी ऍरे वापरलाय. तू जेव्हा विचारलं एम्प्लॉईचा ऍरे वापरा तर आपण ऍरे ऑलरेडी यूज केलाय. ओके ऍज आय सेड लिसन की एम्प्लॉईचा जो आपण क्रिएट केला होता ना कोड
एम्प्लॉईचा जो कोड आपण क्रिएट केला होता, सो त्या कोड मध्ये सॉरी नॉट एम्प्लॉई सो कस्टमरचा शॉपिंगचा कोड जो होता त्या कोड मध्ये सुद्धा सर्चिंग करता येईल आपल्याला. एक सेकंड. ओके थांबा, तोपर्यंत मी कोड लिहितो. सो हियर आय विल टेक अ 2 more methods. Public void, instead of void use a static. Now create. Okay, and what I'm going to return the employee. Now why employee? Just wait. Okay, so here first time this manager class object I will create here, return the MOBJ. Return the MOBJ. So parent can accept any child. Parent can accept any child here. म्हणजे तुम्ही इथे काय रिटर्न केला, मॅनेजरचा ऑब्जेक्ट रिटर्न केला. बट सिमिलरली हियर पब्लिक स्टॅटिक पहिले याला कम्प्लीट करू आपण. पण तुम्ही सांगाल डेव्हलपर कसा रिटर्न करायचा. ओके, सो तुम्ही सांगाल डेव्हलपर कसा रिटर्न करायचा, राईट. सो 1 second. Okay, so this is a program shared by Namrata. Let's see what she did. Person she has created. Okay, that's right. Okay, ठीक है. Constructor, segregator, very good. Employees there. Okay, very good, Namrata. बरोबर केलं हे. Correct. Then next is go to info. अच्छा, हेच मी करत आता. व्हेरी गुड, एक्सलेंट. आता तुझ्याकडे कसं आहे, एकाच क्लासचे ऑब्जेक्ट्स आहेत एम्प्लॉईचे. हेच आपण आधी केलेलं आहे एम्प्लॉई आणि बुक्स मध्ये, फक्त इनहेरिटन्स नाहीये. आता तुम्हाला आठवत आहे का आपण आधी प्रोग्राम केले होते एम्प्लॉई, बुक्स, प्रॉडक्ट, सिंगल क्लासचे. मग तेच प्रोग्राम आहेत, फक्त त्याच्यामध्ये वर एक क्लास ऍड करायला लावलाय. दॅट्स इट. कळलं का. आपला जरी तुम्ही बुक्सचा जरी एक्झाम्पल घेतला, त्याच्यामध्ये बुक क्लास वॉज देअर, बुक इन्फो क्लास वॉज देअर अँड मेन क्लास वॉज देअर. जस्ट यू कॅन ऍड वन मोर क्लास अबाउट बुक. सपोज प्रोडक्ट क्लास यू कॅन ऍड. समजलं का. प्लीज रिप्लाय. आपण जो कोड केलाय बघा, हिने बरोबर केला एकदम. व्हेरी गुड नम्रता. हे बघा, कॅल्क्युलेशन पार्ट पण परफेक्ट केला तिने. आपण जे बिल कॅल्क्युलेट केलं, हेच तुम्हाला मी काल सांगायचा प्रयत्न करत होतो की आपण ऑलरेडी प्रोग्राम घेतलेले, त्याच्यात एक छोटा मोठा चेंजेस करायची गरज आहे फक्त. आणि इथे नम्रताने एकदम परफेक्ट केलंय बघा. आपण बिल पण केलं होतं, कॅल्क्युलेट बिल, तिने याला कॅल्क्युलेट केलं हे टॅक्स वगैरे. डिस्प्ले पण तोच तिने युज केला ऍज इट इज. इथे काय क्रिएट आहे फक्त फंक्शन. तर असं तुम्हाला समजायला हवं की हाऊ टू implement the new changes or new concepts in existing application. How to implement the new changes or concepts in existing application. Okay, so create is there, then calculate is there. Now only in my program I have some condition. जर मी आत्ताचा माझा प्रोग्राम केला, see I'll open my program. What is the condition here? Because I am going to return object of developer and manager class. I'm going to return the object of developer and manager class to the create method. So therefore I have a return type as an employee. Okay, as like Spurti said, we want array of the employee. So look at this. What I'm doing now, employee array is equal to new employee. Okay, employee, suppose I'm taking for 4 employees right now. Now take an example. Here the first employee is ARR of 0, manager. Okay, next employee is ARR of 1 is a developer. Okay, developer. Then next is again developer. Suppose this is 301.
and again manager. Manager. Okay, 401. So Ganesh, Mahesh, Ganesh, इथे काहीतरी नाव लिहिलं असेल, suppose Rakesh, suppose. Okay. So this is okay. So this is manager, developer, and manager once again. Return the array. आता स्फूर्ती, तुम्हाला काय करायचंय, तू जे विचारलं अरे बनवायचा आहे, तर मी इथे मॅनेजर डेव्हलपरचं बनवलंय, तर तुम्ही इथे पर्सनचा सुद्धा अरे बनवू शकताय. क्लिअर एव्हरीबडी? यू कॅन क्रिएट अरे ऑफ अ पॅरेंट क्लास, नो प्रॉब्लेम. You can create an array of person class and you can return the array to this method. Now just go to main class. Go to main class. Employee array is equal to call that create function. You will get the array here. Now let's call the display function. Return the array. Okay, return the array to this main function. Then I want a display function here. Public void display employee arr. Okay, so you will get your array here. Call the display. Create a static method, so we can call directly. And pass the array here. You will get the array. And after this, here, let's use the for loop. I'm going to tell you one new concept. Please understand carefully. You can take employee E colon ARR. Now if, okay, but why I need this concept? Why we need a new concept? Listen carefully. Suppose if I print a data SYSO P dot get ID name salary. Name and need a salary here. So you will get employee ID, employee name, employee salary. But what about the bonus? See, e dot get bonus. Okay, देखो अभी क्या होगा मालूम है कि एम्प्लॉय के थ्रू तुम्हें चाइल्ड का मेथड नहीं मिलेगा. एम्प्लॉय के रेफरेंस के थ्रू you will not get child method. The reason is that employee object can access only those method of the child which are overridden or which are like from the employee class only. So here I am able to call ID, name and salary, but I can't call the bonus and number of hours because bonus और number of hours कहाँ पे है? bonus है manager में और number of hours कहाँ पे? developer में. तो वो दो method में यहाँ पे call नहीं कर सकता. Everybody clear? I cannot call the number of hours and bonus here using this variable. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे. इफ ई इंस्टेंस ऑफ, अगर मैनेजर का है, अगर ई के अंदर ऑब्जेक्ट है मैनेजर का, so then you need to perform down casting. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे आ गया. अभी देखो ई को मैंने कन्वर्ट किया मैनेजर के अंदर एंड देन SYSO manager ID, manager name and manager get a bonus here. Similarly, if you want e instance of developer, तो यहाँ पे अगर ये डेवलपर है तो डेवलपर d इज इक्वल टू डेवलपर और e को कन्वर्ट करो. देखो एक मिनट बताता हूँ मैं, जस्ट वेट. I know that there is a confusion. Okay, just wait. Number of hours. सुनो,
यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, इसको रिमूव करता हूँ मैं कोड को, और इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द कोड जस्ट पुट इनसाइड अ कमेंट। देखो, तो हमने क्रिएट को कॉल किया, क्रिएट ने मुझे एरे बना के दिया जिसके अंदर 2 मैनेजर के ऑब्जेक्ट है, 2 डेवलपर के ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एरे रिटर्न कर दिया, देयरफॉर वी हैव रिटर्न टाइप एम्प्लॉय एरे। एनी क्वेश्चंस हियर रिलेटेड टू दिस कोड, प्लीज रिप्लाई। इथपर्यंत कळलंय सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय। ओके, so just return the array, you will get your array here, pass the array to display function, go to display, डिस्प्ले में आ गए। तो इसने क्या किया, पहला ऑब्जेक्ट ई के अंदर आ गया, एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी आ गया, जो भी हो, मैनेजर हो या डेवलपर हो, आई डोंट नो, उसके लिए डेटा आएगा। बट अगर बोनस चाहिए तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मैनेजर के अंदर। ऐसे क्यों होता है? चलो एक एग्जांपल लो रियल टाइम का, चलो एक एग्जांपल नहीं रहेगा एग्जांपल। अगर मेरे पास मारुति कार है, ठीक है, मारुति कार है जो कि पेरेंट है सपोज, जिसके अंदर 2-3 वेरिएबल कॉमन है, जैसे कि क्या क्या होगा इसके अंदर, इंजन होगा, ओके, उसके बाद सपोज कुछ फीचर्स यहाँ पे ऐड कर दो, कलर होगा, प्राइस है, कलर है, ठीक है, उसके बाद उसका इंजन का कैपेसिटी है, ये कॉमन वेरिएबल है, केयर है, ये कौन सा कार बोला मैंने, एग्जांपल मारुति, या कार बोला, कोई भी कार, ठीक है, एनी कार, कोई भी कार हो जिसको प्राइस होगा, कलर होगा, इंजन का कैपेसिटी होगा। ये क्लियर है कि नहीं? फ्रॉम दिस इफ आई क्रिएट अ कार, टेक एग्जांपल, कार का नेम होगा BMW। सो कौन सा कार है मेरे पास यहाँ पे, BMW, ओके। नाउ इन BMW कार, ठीक है, ये कौन सा कार है, BMW, इसके अंदर भी ये वेरिएबल होने ही वाले हैं, एम आई राइट? प्लीज रिप्लाई। BMW के अंदर भी ये वेरिएबल होंगे ही, यस और नो, प्लीज रिप्लाई। बट BMW के अंदर, BMW कार के अंदर मेरे पास कुछ ऐसे वेरिएबल है जो कि हर कार में नहीं होते हैं। BMW के अंदर कुछ ऐसे वेरिएबल है जो कि बाकी कार में नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने लिखा सनरूफ। अभी ये जो सनरूफ जो वेरिएबल है, ये हर कार के अंदर नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। एवरी कार के अंदर यू विल गेट कलर, यू विल गेट इंजन, नंबर ऑफ गियर्स, ओके, सपोज पावर विंडो वगैरह वगैरह, बट यू विल नॉट गेट दिस वेरिएबल इन एवरी कार, क्लियर? तो अगर कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम इन तीनों मेथड को कॉल करो तो वैलिड है, बट कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर तुम इसको कॉल करोगे तो चलेगा क्या, बताओ तो मुझे। यूजिंग द कार ऑब्जेक्ट इफ यू कॉल कलर, प्राइस एंड इंजन, तो इट्स वैलिड, बट यूजिंग अ कार यू कैन नॉट कॉल द सनरूफ। सनरूफ से अगर कॉल करना पड़ेगा तो उसके लिए तुम्हें कार को कन्वर्ट करना पड़ेगा BMW के अंदर, और तभी BMW इसको कॉल कर पाएगा। कन्सेप्ट कळली का सगळ्यांना मी काय बोललो ते? सनरूफ को कॉल करने के लिए तुम्हें कार को कन्वर्ट करना पड़ेगा BMW के अंदर, और BMW इसको कॉल करेगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया कि ये मेरा, ये जो है ना, ये सनरूफ है, ये वाला, ये सनरूफ हर कार के अंदर नहीं है, ये सिर्फ मैनेजर कार के अंदर है, क्लियर? तो इसलिए इस कार को तुम पहले मैनेजर के अंदर कन्वर्ट करो एंड देन यू कैन कॉल द सनरूफ हियर। तो सिमिलरली ये इसका सनरूफ है, नंबर ऑफ आवर्स। अगर इसको कॉल करना है तो तुम्हें तुम्हारे डेवलपर को, ऑब्जेक्ट को, ई वाले रेफरेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेवलपर के अंदर, एंड देन यू कैन कॉल नंबर ऑफ आवर्स, अभी ये मेरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, बट तुम लोगों का इनहेरिटेंस कॉलेज में जो दिया है वो सिंगल इनहेरिटेंस है, सिर्फ पर्सन से एम्प्लॉय किया है उन लोगों ने, और मैंने क्या किया, एम्प्लॉय से मैनेजर और डेवलपर कर लिया। एंड यू हैव टू डू वन मोर थिंग, कि तुम लोगों को एक कैलकुलेशन दिया इन्होंने, जैसे अभी नम्रता ने भी ऐड किया है उसको, कि तुम्हें उन्होंने उसका पीएफ कुछ तो भी कैलकुलेट करने को बोला है, टैक्सेस वगैरह। तो यहाँ पे तुम्हारा मेथड आएगा पब्लिक वॉइड कैलकुलेट, और उसको भी तुम लोग एरे पास कर दोगे,
एम्प्लॉई ARR, यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन पार्ट यूजिंग अ फॉर लूप, सेम फॉर लूप यूज करो इस टाइप का, और यहाँ पे आएगा कॅल्क्युलेशन. आता जमेल का नाही सगळ्यांना मला सांगा, ज्यांची असाइनमेंट आहे. कमिंग स्टुडंट, टेल मी, कॅन यू एबल टू कंप्लीट युअर असाइनमेंट नाउ? देखो, intentionally I am not taking the same example, please understand. I want you should develop the example. And real Namrata, very good job Namrata, you have done like example perfectly, no problem Namrata. ठीक है. So guys, please complete this assignment. So as I said कि और बाकी लोगों ने भी वही हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है, कुछ बाकी कुछ नहीं चेंज, वो सिंपल है इससे, इस एग्जाम्पल से. तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय क्लास बना दिया, एम्प्लॉय क्लास से मैंने यहाँ पे पर्सन क्लास बना दिया, पर्सन, और मैंने और एक क्लास बनाया, कौन सा, नॉट पर्सन, सॉरी नॉट पर्सन, ये पर्सन नहीं है, पर्सन मैंने कल बनाया था. तो एम्प्लॉय क्लास बनाया, एम्प्लॉय के थ्रू मैंने यहाँ पे डेवलपर एक बना दिया, उसके बाद एक मैंने मैनेजर बना दिया, और ये दोनों इनहेरिट कर रहे हैं एम्प्लॉय को फॉर दिस 3 वेरिएबल आईडी नेम सैलरी. तुम इसके ऊपर भी एक क्लास ऐड करो, इस एग्जांपल में पर्सन ऐड करो. चलो तुम लोगों को थोड़ा चेंज करके देता हूं मैं एग्जांपल. तुम्हें क्या करना है, एम्प्लॉय के ऊपर एक पैरेंट ऐड करो पर्सन नाम का, और उस पर्सन के अंदर तुम लोग क्या करोगे कि ये जो नेम होता है ना, नेम, एज, तो ये पर्सन में डाल दो, और बाकी वेरिएबल यहाँ पे ले लो एम्प्लॉय से रिलेटेड. अपने एग्जांपल में भी ऐड करो सब लोग. क्रिएट अ पर्सन क्लास बिफोर एम्प्लॉय, जिसके अंदर नेम आएगा और बर्थ डेट आएगा, डेट याद रखो, दो चीजें ऐड करनी है. ऐड द पर्सन क्लास एंड वेरिएबल इज फर्स्ट नेम एंड एज और डीओबी. ये तीन तुम ऐड कर दो, ये तुम ऐड करोगे पर्सन के अंदर. आगे मैं नहीं बोलूंगा, लेट्स सी अभी कैसे करते हो, ठीक है. बाकी कोड एज इट इज रहेगा, सिर्फ एक क्लास चाहिए मुझे, कौन सा, पर्सन नाम का. समझ सगळ्यांना, प्लीज रिप्लाई. चलो देन विल स्टॉप हियर नाउ. हाँ चलो बाय.